Let's continue with the chapter 8, Cell Biology and Biotechnology. आज का टॉपिक है Applications of Biotechnology in Agriculture. अब we are going to talk about fertilizers. Agriculture से related अगर कोई important चीज़ आती है दिमाग में तो वो है fertilizers. अब ये fertilizers can be organic fertilizers or maybe chemical fertilizers. Organic fertilizers are the best for agriculture because these organic fertilizers they improve the water holding capacity. पानी को रोकने की क्षमता जो है ये soil की improve होती है because of organic fertilizers और जिनको हम manure बुलाते हैं कहलाते हैं और कहते हैं. Now ये जो manure होती है जो organic fertilizer है this is making the fertile layer upper fertile layer due to humus क्योंकि humus का production होता है और ये humus बनता है due to the natural microorganisms which are present in the soil as well as the insects the layer which is containing the debris of maybe the leaves dead leaves or it may be the leftover of the previous agricultural produce or it may be the vermiculture or you can say the earthworms which are present in the soil itself. ये सारे मिलके that is earthworm, microorganisms, the dead organisms, dead leaves, debris, everything सारे के सारे मिलके they form humus और ये जो humus होता है this keeps on making the upper layer very fertile. बिकॉज इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंट होता है और अर्थवॉर्म्स जो प्रेजेंट होते हैं द माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं फंगस जो प्रेजेंट होता है ये सारे के सारे डेब्रिस को कन्वर्ट कर देता है वापस इनटू नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. सो एनपीके सॉइल में फिर से बन जाता है विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप प्लांट्स. Organic fertilizers, they don't harm the soil in any way. Earthworms जो हैं, they are also called as friend of farmers and these earthworm, they aerate the soil. उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को increase करते हैं because they keep on rotating the soil, upper soil to lower and lower soil upper. So when the soil is been rotated from top to bottom and bottom to top, that means used soil goes down and the lower soil comes up which is more fertile as compared to the topmost. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम किस तरीके से एक्सेस फर्टिलाइज़र का यूज़ कम कर सकते हैं. एक और चीज़ आती है हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स है सॉइल लेस फार्मिंग यूजिंग वाटर एंड लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर्स. पानी में खेती करने को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है और ये हाइड्रोपोनिक्स के लिए हमें सॉइल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. हम इसको किसी भी टेरेस पे या किसी भी एरिया में जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे हम पानी की हेल्प से हम हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं. वहाँ पे प्लांट ग्रो कर सकते हैं. बस हमको ज़रूरत है तो फर्टिलाइज़र्स की जो लिक्विड फॉर्म में है. इवन अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं तो it will be very very good compared to chemical fertilizers. So here you can see in the picture the hydroponics is done that is called as soilless culturing. Chemical fertilizers का excess use, liberal use is responsible for making the soil to lose its fertility and this soil become useless for agricultural purpose because its pH level changes, acidic level changes and due to which sometimes excess use of chemical fertilizers results into making the soil turn into barren lands. मतलब ज़मीन बंजर हो जाती है अगर हम ज़्यादा chemical fertilizers को use करते हैं because chemical fertilizers they kill the useful microorganisms which are present in the soil which are responsible for recycling the material. ये ख़त्म हो जाते हैं. earthworms are harmed, fungus is harmed. At the same time जो humus है वो नहीं बन पाता because of the chemical fertilizers. So it's very important
to know, to have a proper knowledge of use of the manure and the fertilizers. Insecticide. Insecticide plays a very important role in agriculture. होता क्या है, इंसेक्टिसाइड बहुत ज़रूरी होते हैं बिकॉज बहुत सारे इंसेक्ट दे फीड ऑन द क्रॉप प्लांट्स, और जब ये उस पर फीड करते हैं तो ये पत्तियां खा जाते हैं, पूरी की पूरी स्टेम खा जाते हैं, जिसकी वजह से उस प्लांट की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी पूरी रिड्यूस हो जाती है, रिजल्टिंग इनटू लेस यील्ड ऑफ द क्रॉप, और दे मे डिस्ट्रॉय the insects, they may destroy the fruit, they enter into the fruit and destroy the flower also. So it is very important that insect has to be removed from the area where crops are grown. Even though plants में अपनी एक natural immunity होती है इस किसी भी disease को prevent करने के लिए, infections को prevent करने के लिए, so लेकिन उसके बावजूद भी यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय करते हैं एट अ वेरी वेरी लार्ज लेवल द प्लांट्स और स्पेशली द स्टैंडिंग क्रॉप्स. यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इज ऑल्सो रिजल्टिंग इनटू बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज जब हम क्रॉप में इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं, तो वो प्लांट्स में एंटर कर जाता है और फ्रूट्स में एंटर कर जाता है, और जब ये प्लांट्स हम खाते हैं सब्जियों के फॉर्म में, फ्रूट्स के फॉर्म में, क्रॉप्स के फॉर्म में, मे बी पल्सेस के फॉर्म में या फिर ग्रेन्स के फॉर्म में, तो वो हमारी बॉडी में एंटर करता है. दिस ट्रैवलिंग ऑफ द केमिकल्स फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द फूड चेन रिजल्ट्स इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द बॉडी. और केमिकल्स, तो केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन स्टेप वाइज मैनर में बढ़ता चला जाता है इन अ फूड चेन. शॉर्टर द फूड चेन, लेसर इज द कॉन्सेंट्रेशन, लॉन्गर द फूड चेन, मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन. एंड इवन इन द फूड वेब के अंदर बहुत सारे फूड चेन इंटरट्वाइंड होते हैं, जिसकी वजह से फूड वेब में पूरी तरह से ये केमिकल्स एक लेवल से दूसरे लेवल पर कॉन्सेंट्रेट होता चला जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन. तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ द केमिकल्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन और मे बी इन अ फूड वेब. एग्जाम्पल DDT, मेलाथियोन, क्लोरोफायरोफॉस. तो ये सारे जो केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, दे आर हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो. Organic farming. Organic farming is a boom, it's a boon to the agricultural field. Various problems like soil fertility and pest infestation have become serious. अगर खेती है, प्लांट्स हैं, तो ये पक्का है कि पेस्ट आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हार्म द प्लांट्स. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फार्मर्स ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडैप्ट कर लिया है, एंड दे आर गोइंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. देयर हैज़ टू बी अ कंप्लीट बैन ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर हमको इस नेचर को बचाना है, इस एनवायरनमेंट को बचाना है, फूड चेन को बचाना है, बैलेंस को बचाना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली ख़त्म करके, इफ़ नॉट ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अमाउंट हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन कम्प्लीटली शिफ्ट ऑन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग में ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करें. देयर आर ऑयल केक्स जो होते हैं, जब तेल निकाल दिया जाता है, तेल निकालने के बाद जो नीचे का जो रेसिड्यू बच जाता है, उस रेसिड्यू को कन्वर्ट कर देते हैं ऑयल केक्स के फॉर्म में. किसी भी तेल को जब निकालते हैं तो बाद में जो कचरा रह जाता है, उस कचरे को कॉम्प्रेस करके ऑयल केक बना दिया जाता है, विच इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द एनिमल फूड ऑल्सो एंड फॉर द क्रॉप प्लांट्स ऑल्सो. वर्मीकल्चर इज़ ऑल्सो a very efficient manner which is responsible for formation of vermicompost.
तो वर्मी कल्चरिंग करके, हम अर्थवॉर्म की कल्चरिंग करके हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं. कंपोस्ट दैट इज़ मैन्योर which is made using the earthworms. These are very good for farming. Apiculture. Apiculture, it's a branch of science which deals with the culturing of honeybees artificially and maybe naturally also. That is called as apiculture. So culturing of honeybees, चाहे artificial हो चाहे natural हो, that is called as apiculture. Maybe artificial और मे बी नेचुरल, तो इसको हम बोलते हैं एपीकल्चर. नाउ एपीकल्चर आर्टिफिशियली जब हम करते हैं तो वहाँ पे जहाँ पर भी हम एपीकल्चर करते हैं, दैट मीन्स हनी बीज का प्रोडक्शन करते हैं, कल्चरिंग करते हैं, उस एरिया में वहाँ पे हम फ्लोरिकल्चर भी करते हैं. दैट मीन्स हम फ्लावर्स को भी वहाँ लगाते हैं ताकि द insects or these honeybees can get easily the cell sap or the nectar from those flowers, and we can develop a particular taste of that honey. That means that is called as pasturage. तो pasturage is the taste of the honey which is maintained. आपने देखा होगा कि डाबर का हनी आता है, तो जब डाबर हनी प्रोडक्शन होता है आर्टिफिशियली, वो बनाते हैं बाई मेकिंग दीज एपीकल्चर टेक्निक्स. तो यहाँ पे वो बॉक्सेस लगाते हैं, आर्टिफिशियल बॉक्सेस लगाते हैं, एंड जिसमें हनी कलेक्ट हो जाता है, और उसकी हेल्प से वी कैन गेट लार्ज अमाउंट ऑफ हनी विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हाइव्स एंड बीज. उनके बीहाइव को हम बिना डिस्ट्रॉय किए, बिना बीज को मारे, बिना उनको हार्म किए, हम आर्टिफिशियल बॉक्सेस में हनी को कलेक्ट कर सकते हैं. सो these are artificial beehives you can see in this picture, and in the upper one you can see कि honey is getting collected in the honeycomb. Medicinal plants. Medicinal plants जो होते हैं, these are एक हमारे लिए स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री के लिए it is a gift from the God, you know, with a great diversity. इतनी variety of plants हैं हमारे इंडिया में कि beyond imagination, and those plants are being used traditionally as Ayurvedas since a long time, and these plants are used to cure number of diseases. तो इन plants को, इनके जूस को, इनके फ्रूट्स को, इनके एक्सट्रैक्ट को किसी भी फॉर्म में हम डिजीज़ को क्योर करने के लिए इन मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ करते हैं. मेडिसिनल प्लांट्स लाइक अडुल्सा है जिससे कफ सिरप बनाया जाता है, तुलसी है विच इज़ यूज्ड अगेन फॉर सो मेनी डिजीज़ेस, नीम जो है उसका हर पार्ट हम कितने डिजीज़ेस के लिए यूज़ करते हैं. तो दीज आर द मेडिसिनल प्लांट्स. तो वैसेसिन नाम का एक कंटेंट होता है विच इज़ प्रेजेंट इन अडुल्सा, and that is specially used for curing the cough. So medicinal plants, it is a God gift to us, and हम लोगों ने इन medicinal plants को बहुत पहले से हमारे पूर्वज इनको यूज़ करते आए हैं. एंड ये जो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा का, ये इतना सेफ है that there are no side effects and the disease can be cured very easily, in a very well manner, so that there is no or any kind of the reactions in the body, there is no side effects in the body, as well as these medicinal plants can be used or consumed daily in our food. Now fruit processing. Fruits are fast perishable item. तो फ्रूट जो हैं इनकी अवेलेबिलिटी सीजनल होती है. तो अगर हमको थ्रू आउट द ईयर अगर हमको फ्रूट को खाना है तो उनकी अवेलेबिलिटी करवानी है, तो हमको उनको प्रोसेस करके रखना पड़ता है, सो दैट हमें पूरी साल वो फ्रूट्स मिलते रहें उसी टेस्ट फॉर्म में विदाउट चेंजिंग द टेस्ट, एंड दे कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो हम डेली हम वेरियस प्रोडक्ट खाते हैं फ्रूट्स के, जैसे चॉकलेट हैं, जूस है, जैम है, जेलीज़ हैं, एंड ये फ्रूट्स को हम अलग अलग तरीक़ों से प्रिजर्व करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एंड अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ये बहुत फास्ट पेरिशेबल होते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत केयरफुली
प्रोसेसिंग करनी पड़ती है ताकि इनकी अवेलेबिलिटी पूरी साल रह सके। टेक्निक्स जैसे कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट्स को रखा जाता है, उसको फ्रूट्स को ड्राई किया जाता है, सॉल्टिंग की जाती है, इवेपोरेशन करके सुखाया जाता है, एयर टाइट कंटेनर में उनको रखा जाता है, पैकिंग करके फिर उनको स्टोर कर दिया जाता है।